So whether everyone is back, shall we start now? Yes, sir. Good. So आपको याद होगा अभी मैंने 9:20 बोल रहा था कि 9:20 पे स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूरोप नाउ. आई एम बेसिकली टेकिंग दिस सेशन फ्रॉम एम्स्टर्डम. सो यहाँ पे अभी 9:20 हो रहा है. तो इसीलिए मैं 9:20 बोल रहा था. वो मिस्टेकली मुझसे निकल गया. It's AM or PM? इट्स एम. Okay. PM. एम यहाँ पे अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है 9:20. Okay, guys, so I'm coming back to again. We are discussing about this waterfall model and agile model. So अभी जो next session रहेगा, mainly हम agile पे ही focus करेंगे. In our today part, we will discuss about the agile, and which is really very important to know about you. How in current organization कि अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन में एजाइल में कैसे काम हो रहा है, कौन से फ्रेम एजाइल के फ्रेमवर्क पे वो काम कर रहे हैं, उसका यूज क्या है, वो हेल्प कैसे कर रहा है. Hello. Hello. Uh, Please, Sorry, sir, everyone, but please. can you ask me what's your name? Yes, please. What's your good name? Prashant. Prashant. Yeah. Thank you, sir. Yes, sir. Continue. Yeah. Can you please everyone go on mute? And if you have any such and questions, so you can put in a chat because I am parallelly reading it and I will take it from there. Why I'm asking that? Because if you are not unmute, so it will be a noise issue and can be disturbed to understand or listen the thing. Okay. Okay, sir. Okay. So, uh, Archana, you joined bit late, but we will explain you and share all those information. So no worry about that because we just discuss bit basic thing, and now we are going to start with agile. So don't worry about that what you have missed in past. Yeah. So here basically we cover this HDLC part. Now come to that agile. Any idea like whether this HDLC belong to waterfall or agile? Can you put in chat? If it's in waterfall, you may put in one. If you feel like that agile, you may put two. If you feel like that, okay. I mean, if it's in a both, you may put in three. So can you quickly put in chat one, two, three? For waterfall, this HDLC part into one. For agile, two. And for if it's coming in both, then three. Amit, what about others? I can see response only from Amit and Hansiha. Hanisa, right? Sorry, Hanisa. So what about others? Can you please guys put your point again? Like, okay, this comes for this HDLC model belongs to waterfall or agile or for both. So like one, two, three. Okay, no worries. So I'll come to that points later while explaining this agile process. मतलब जब मैं agile process explain करूंगा, मैं बताऊंगा कि हाँ ये HDLC agile से belong करता है या waterfall से या दोनों से. So I will explain into that part. So as per definition, what is agile? So to help address a shortcoming of waterfall method, agile method were developed. जैसे मैंने पहले explain किया था इसके बेसिस पे कि सपोज करो आपका कोई प्रोजेक्ट 5 महीने का हो 5 साल का हो तो वो पूरा उसके बाद आपको फीडबैक्स वगैरह मिलते थे. अभी क्या है कि उसको शॉर्ट कमिंग करने के लिए उसको स्मॉलर टर्म्स में डिवाइड करने के लिए बेसिकली हम इस एजाइल मेथड को डेवलप किए हैं. ये जो इटरेशन अप्रोच है यहाँ पे आप देखोगे कि ये एजाइल इन वाटरफॉल इज इंक्रीमेंटल, एजाइल इज इटरेटिव अप्रोच या ये जो इटरेटिव या इटरेशन अप्रोच है उसको हम स्प्रिंट्स बोलते हैं. स्प्रिंट एजाइल में सिर्फ स्प्रिंट ही नहीं होता है, एजाइल में अदर वे ऑफ वर्किंग भी होती हैं. एक्सी एंड कानबन एंड एटसेट्रा, देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स.
So sprint is one of the popular way of working in agile methodology, या one of the popular framework within agile methodology. तो सिर्फ sprint नहीं होता, बट sprint सबसे पॉपुलर है agile में काम करने का तरीका. आपने स्प्रिंट सुना है कभी? मतलब जैसे किसी गेम में सुने होंगे जिसमें जैसे रनिंग होती है, उसमें स्प्रिंट्स लगाते हैं लोग. बहुत तेजी से दौड़ के, मतलब चीजों को जल्दी से दौड़ के कवर करना, उसको स्प्रिंट्स बोलते हैं. शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब स्प्रिंट्स कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का नहीं होता है. स्प्रिंट्स 50 मीटर या 100 मीटर का होता है मैक्सिमम. तो उसको स्प्रिंट्स बोलते हैं. और इसमें आप देखो कि जो इटरेशन है आर शेड्यूल सीक्वेंसली विथ इंडिविजुअल फीचर असाइन टू ईच इटरेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ आइदर ऑन गोइंग प्रायोरिटाइज एक्सरसाइज. कि जो भी आपकी प्रायोरिटीज की चीजें हैं, हम उसी चीज को अपने इटरेशन उसमें लेते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वी बेसिकली कंप्लीट द थिंग्स. और जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बाद हमें फीडबैक मिलता है. तो दिस इज जस्ट नथिंग बेसिकली. प्रायोरिटी के बेस पे हम चीजों को पिक करते हैं और डिलीवर करते हैं. जो फीडबैक होता है उसको हम काम करते हैं. आई आस्क्ड यू क्वेश्चन राइट, कि ये जो एचडीएलसी का पार्ट है, ये वाटरफॉल में आता है या एजाइल में आता है, या दोनों के अंदर आता है? बेसिकली इट्स कम्स फॉर बोथ वाटरफॉल एंड एजाइल. देखो, एनालिसिस, डिजाइन, बिल्ड एंड टेस्ट एंड डिप्लॉय, ये वाटरफॉल मॉडल है. आर स्टिल परफॉर्म फॉर ईच फीचर ऑफ स्टोरी. ये अभी भी होता है. अब दोनों में मुझे डिफरेंस मैं बताता हूँ कि ये वाटरफॉल के अंदर क्या होता था और एजाइल के अंदर क्या होता था. बेसिकली इस पिक्चर पे देखो. तो इसमें क्या होता था कि जो ये पिक्चर है, ये अभी मान लीजिए आपका डेवलपमेंट का फेज है, या ऐसे आप समझो कि अभी आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपने किया 0 to 3 मंथ, फिर डिजाइन किया 3 मंथ, तो 6 महीने ऐसे हो गए. फिर आपने बिल्ड किया 2 साल में, तो 2 साल 6 महीने ऐसे हो गए. फिर आप टेस्टिंग कर रहे हो 6 महीने की, तो ये 3 साल हो गए. आपने डिप्लॉयमेंट 3 महीने में किया, तो 3 साल 3 महीने हो गए. फिर मेंटेनेंस पे आप आए. तो ये बेसिकली आप क्या करते हो, एक ही बार करते हो विद इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. बट अभी क्या होगा, जब हम एजाइल में काम करेंगे, तो आप ये 1 2 3 4 5 देख रहे हो, आप सारे फेज में काम करोगे. पहले भी फेज में आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद डिजाइन करोगे, फिर डेवलपमेंट, फिर बिल्ड, फिर डिप्लॉय एंड फिर कस्टमर फीडबैक और मेंटेनेंस. ये काम आप इसमें भी करोगे. ये इसमें मतलब जो स्प्रिंट्स होता है, बेसिकली स्प्रिंट भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है. जैसे नॉर्मली 2 वीक्स का स्प्रिंट होता है, 4 वीक का स्प्रिंट होता है, 6 वीक का. इससे लंबा नहीं होता है. 2 3 4 6 5 इससे लंबा नहीं होता है. मैक्सिमम 2 वीक्स का ही होता है. मतलब सॉरी, नॉट मैक्सिमम, पॉपुलर वाला जो होता है मोस्टली 2 वीक्स का होता है. तो इसमें क्या करोगे आप कि ये जो एजाइल का पार्ट है, आप इसमें एक बार परफॉर्म कर रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो, आप सारे हर फेज में कर रहे हो, हर स्प्रिंट में कर रहे हो. मतलब एवरी 10 डेज में यू आर परफॉर्मिंग ऑल दिस 5 or 6 एक्टिविटी. ये क्लियर हुआ आपको? Yes. एनी कोई डाउट इसमें कि मतलब ये एचडीएलसी क्लियर हो गया, और एचडीएलसी कैसे यूज होता है वाटरफॉल में और एजाइल में? इसमें कोई डाउट आई थिंक सो नहीं होना चाहिए. Okay, so again, I told you like agile methodology meaning a practice of promotes continuous iteration. Continuous iteration आप ये देख रहे हो ना कि आप continuously एक से दूसरे फेज में मतलब मूव कर रहे हो. इसको हम continuous iteration बोलते हैं, या sprints बोल सकते हैं. आप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अगेन, जो मैंने बताया कि ये जो एचडीएलसी मॉडल है, ये थ्रू आउट हर आप इटरेशन में या हर एक स्प्रिंट में आप बेसिकली परफॉर्म करते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ये जो बिल्डिंग और टेस्टिंग है, आप ये देख रहे हो कि इसमें ये वाटरफॉल में और एजाइल में एक बहुत माइनर डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस मतलब इन द टर्म ऑफ एचडीएलसी, नॉट लाइक दैट प्रॉपर आर होल थिंग्स. एचडीएलसी के कॉन्सेप्ट में एक ही डिफरेंस है. ये है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया. मतलब आपने, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप घर बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो जब घर बन गया उसके बाद टेस्ट करते हो, बनने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद. बट एजाइल में ऐसा नहीं होता. एजाइल में ये दोनों पैरेलल चलते हैं. बिल्डिंग और टेस्टिंग दोनों साथ साथ चलते हैं.
और तभी हमें बेसिकली ऑटोमेशन जॉब या रिग्रेशन टेस्ट जॉब की जरूरत पड़ती है। आल्सो अभी मैं आपको आगे चल के टीडीडी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एंड बीडीडी बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी नहीं, वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। तो उसमें अभी के केस में क्या होता है कि जब आप एजाइल में टीम बैठी हुई है, जैसे 4 डेवलपर 2 टेस्टर या 2 डेवलपर 2 टेस्टर, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। अब टेस्टर्स जो है अपना जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करता है। डेवलपर अपने डेवलपमेंट की एक्टिविटी स्टार्ट करता है। जैसे वो डेवलपर डेवलपमेंट का कोड इंस्टॉल कर डिप्लॉय करेगा, तो रिग्रेशन जॉब होती हैं, ऑटोमेशन टेस्ट जॉब होती हैं, जो कि अगेन मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि हम जेनकिंस या अजूर डेवऑप्स या एडब्ल्यूएस जॉब में बना सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आप रन करोगे और आप देख पाओगे कि आपके सारे यूज केसेस रन कर रहे हैं या नहीं रन कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर है, तो मान लीजिए हमें कैलकुलेटर बनाने का रिक्वायरमेंट मिला है, तो डेवलपर ऐड सब्सट्रैक्ट डिलीट इन सब की फंक्शनलिटी बना रहा है। टेस्टर पैरेलली स्क्रिप्ट्स लिखेगा इन सभी चीजों की। और जैसे ही डेवलपर अपना काम कंप्लीट करेगा, उस सेम टाइम टेस्टर भी अपना काम कंप्लीट करेगा विद इन अ स्प्रिंट। इसी को हम स्प्रिंट बोलते हैं कि एक स्प्रिंट में दोनों के काम डिफाइन रहेंगे और दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे डेवलपमेंट और टेस्टिंग का काम। तो ये क्लियर हुआ, डेवलपमेंट और टेस्टर हाउ इट्स गो वर्क टुगेदर इन एजाइल पार्ट। Yes, sir. लुक, एजाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वे ऑफ वर्किंग, इट्स नॉट लाइक अ टेक्नोलॉजी कि आपको कुछ इसमें लर्न करना है। इट्स मोर अबाउट दैट वे ऑफ वर्किंग, सिमिलर लाइक दैट। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से मतलब चलना है, उसके स्टीयरिंग्स कैसे हैं, अगर रेड लाइट है तो रुकना है, कब आपको। तो ये जो सारी चीजें हैं, इट्स वे ऑफ वर्किंग। उसमें गाड़ी चलाना एक अलग चीज है कि जैसे आपको रोड खाली आप गाड़ी चला रहे हो, वो एक अलग चीज है। बट जो वे ऑफ वर्किंग है, एजाइल इज मोर अबाउट दैट द वे ऑफ वर्किंग, कि आपको कैसे आपको चीजें को परफॉर्म करनी है। तो एक रूल सेट है, ये एक रूल्स आप बोल सकते हो कि इसमें ऐसा नहीं कि आप जावा या डॉट नेट या इसकी तरह कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि आपको सीखनी है। इट्स जस्ट वे ऑफ वर्किंग, एक मेथडोलॉजी, एक प्रोसेस है। तो ये क्लियर हुआ एजाइल मेथडोलॉजी प्रॉपरली। Yes, sir. Yes, sir. गुड। और एच डी एल सी ऑल्सो, राइट। सो ये दो चीज में मतलब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन रेज योर हैंड्स कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन, you can put in chat or text, what is maintenance, what exactly has been done in maintenance। मैंने ये सारे चीज अच्छे से समझाए हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर बिल्ड, टेस्टिंग, बट मैंने मेंटेनेंस पे इतना भी फोकस नहीं किया। दैट क्वेश्चन आई लेफ्ट फॉर यू गाइस कि आप मुझे बताओ, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आप समझ पाए कि मेंटेनेंस क्या है या मेंटेनेंस में क्या होता है। डोंट थिंक इन आईटी पार्ट, अगर आपको एक्चुअली नहीं पता कि हाँ मेंटेनेंस क्या होता है, आप कोई भी बिल्डिंग की एग्जांपल उठा सकते हो कि उसमें मेंटेनेंस में क्या होता है। तो आप मुझे कोई भी समझा सकता है, नॉट समझाना स्पेशली, यू कैन पुट योर डिटेल्स इन अ चैट। आप चैट में लिख के बताओ कि मेंटेनेंस क्या होता है। आई विल बी वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो जस्ट पुट इन चैट कि मेंटेनेंस में क्या होता है। Good. It is a service which is provided by company to the client. It's BPO and KPO by Amit. We shall maintain our software after release that it's working with meets requirement and all. Cool. और कोई anyone else? Again मैंने आपको बताया कि आप रिलेट कर सकते हो बिल्डिंग से, कि कोई बिल्डिंग बन चुकी है, उसके बाद आप कई लोग सोसाइटी में रहते हो, आप मेंटेनेंस कॉस्ट भरते हो, राइट। 5,000 6,000 4,000 ईयर। वो क्या काम करते हैं, वो सेम चीज आप आईटी से रिलेट कर लो।
ओके, तो फिर लेट मी एक्सप्लेन. थैंक्स अमित एंड विशाल फॉर योर रिमार्क्स. सो मेंटेन योर सॉफ्टवेयर. पहले आप मेंटेनेंस टर्म समझो. जैसे आप किसी भी सोसाइटीज में जब फ्लैट लेते हो, तो जो भी सेलर है वो आपसे मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेता है कि आपको 5,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ या साल के इतने देने होंगे. उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी चीजें हैं उसके अंदर, सोसाइटीज के अंदर, जैसे पार्क हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, जिम हुआ, लाइट्स तक इवन हुए, जो लाइट्स लगे होते हैं आपके बिल्डिंग, घर के अंदर नहीं, बिल्डिंग्स के कॉमन से यूजेस के, उनके, तो उन सब चीज को मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट है, स्वीपर्स हुए, उनको मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है. सिमिलर इन आईटी पार्ट एज वेल. चीज थिंग्स कम टू द मेंटेनेंस. एक बार आपका सॉफ्टवेयर जब डिप्लॉय हो गया, देन इट्स रिक्वायर अ मेंटेनेंस. जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये किसी सर्वर पे डिप्लॉयड है, वेब स्फेयर एप्लीकेशन, वो बहुत कॉमन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. जैसे मान लो आपके आईबीएम या वेब आईबीएम के सर्वर पे या ओरेकल के सर्वर पे डिप्लॉय है, तो क्या होता है कि एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ या एवरी क्वार्टर वो रिलीज करते हैं अपना नया वर्जन. और उसमें पुरानी चीजों पे वो सपोर्ट नहीं होते, नई चीजों पे सपोर्ट होते हैं. तो बेसिकली वो आस्क करते हैं कि इसको अपग्रेड करो, आप अपने जो भी जो भी आपका एप्लीकेशन सर्वर है वो उसको अपग्रेड करो. तो दैट कॉल्ड वन ऑफ द मेंटेनेंस पार्ट. सेकंड मेंटेनेंस पार्ट की, जैसे क्लाइंट का कि जो आपने ये फीचर्स बनाया है, फॉर एन एग्जांपल मैं आता हूँ इस फोटो पे. जैसे आप देखोगे ये हाथ यहाँ पे है फेस की तरफ, ये जो मोनोलिसा वाला फोटो है नीचे एजाइल वाले पार्ट में, अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, माउस का कर्सर. तो ये देख रहे हो फेस की तरफ हाथ है. इन्होंने बताया गया कि भाई फेस की तरफ नहीं, हाथ नीचे, दोनों हाथ एक के ऊपर रखना है. तो ये आपने ये डिलीवर करने के बाद ये आपको कस्टमर फीडबैक मिला और आपने इसको मेंटेन. तो दैट आल्सो वन ऑफ द पार्ट यू कैन से दैट मेंटेन. मेंटेनेंस और बग फिक्सिंग में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है. कि जब आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड होकर डिप्लॉय जब प्रोडक्शन पे चला गया, उसके बाद जो भी चीजें आती हैं, वंस इट डिप्लॉयड ऑन दिस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, I told you earlier this deployment is not for the lower environment. लोअर मतलब जो कि यूटी फॉर यूजर टेस्टिंग, यूटी फॉर यूटी, एसटी और यूएटी होता है. ये तीन इन्वायरमेंट लोअर इन्वायरमेंट होते हैं, जिसमें बेसिकली बिजनेस यूजर्स एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स और टेस्टर टेस्ट करते हैं. इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. डिप्लॉयमेंट मतलब प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, जब एक्चुअल चीजें लाइव हो चुकी हैं, उसके बाद जो भी चीजें आती हैं इट्स कम इनटू द मेंटेनेंस पार्ट. तो ये मेंटेनेंस होता है. अब बिल्डिंग से रिलेट कर सकते हो उसकी चीजों को. एजाइल में मतलब एवरी स्प्रिंट के बाद जो भी चीजें पुराने स्प्रिंट से रिलेटेड हैं दैट कम इनटू द मेंटेनेंस. बट वंस इट्स गो लाइव और थिंग्स स्टेबल हो जाती हैं, उसके आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो. जैसे आप लोग विंडोज यूज करते हो, तो आपको देखते होगे कि नोटिफिकेशन आता है विंडोज अपडेट करने के लिए. व्हाट्सएप यूज करते हो, नोटिफिकेशन आता है अपडेट करने के लिए. दो जरा मेंटेनेंस एक्टिविटी. और नॉर्मली एक और चीज बता रहा हूँ कि जितने भी अच्छे मतलब बड़े या एप्लीकेशन होते हैं, उनका मेंटेनेंस ऐसे टाइम होता है जिसमें सबसे कम यूजर एक्टिविटी हो. जैसे इंडिया में अगर व्हाट्सएप का मेंटेनेंस करना, तो रात को 2-3 बजे नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि बहुत कम लोग जगह रहेंगे, बहुत कम इम्पैक्ट होगा. अगर वो दिन में 2 बजे करेंगे तो बहुत ज्यादा यूजर इम्पैक्ट रहेंगे. हमेशा उसकी रिलीज ऐसे टाइम करते हैं जिसमें उसका इम्पैक्ट कम हो. तो ये भी चीज मेंटेनेंस के टाइम पे ध्यान रखी जाती है. ये चीज अब आगे जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में तो आपको अच्छे से आइडियाज लगेगा. अभी आप टाइम में ये समझ लो कि हाँ मेंटेनेंस में होता क्या है. बट वाई से ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसे टाइम पे नोटिफिकेशन दिया जाता है जिस टाइम पे यूजर कम अवेलेबल हो? उस टाइम पे इसलिए दिया जाता है, देखो मेंटे आपका काम रुका नहीं है, बट अगर वो दिन में करेंगे तो उस टाइम पे फॉर अ टाइम बिंग, सपोज करो कि बैंक है, एक एग्जांपल आप बैंक की लो क्योंकि वो बहुत ही हार्डकोर टॉपिक है. अगर बैंक में कोई चीज, कोई सर्वर पे मान लो कि किसी भी सर्वर पे एप्लीकेशन रन कर रहा हो, आई थिंक यू गाइस नो द एप्लीकेशन सर्वर, नहीं भी जानते तो मैं बताऊंगा. हर एक चीज एक सर्वर पे रन होती है. जैसे गाड़ी है रोड पे चलेगी, उसके लिए रोड चाहिए, उसी तरह एप्लीकेशन सर्वर्स पे चलेगा. तो जो भी सर्वर्स होते हैं, अगर सपोज करो कि आईबीएम का सर्वर है, और भाई अगर अपडेट अगर आप दिन में कर रहे हो तो उस समय कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा. सम टाइम आप देखते हो कि बैंकिंग देता है कि हमारे सर्वर डाउन है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो जाते हैं. लेकिन अगर उनका मेंटेनेंस एक्टिविटी चलती है, अपग्रेड एक्टिविटी चलती है, वर्जन अपडेट एक्टिविटी चलती है, तो वीकेंड को चलेगा, वो संडे को करेंगे, नहीं तो ओवरनाइट करेंगे. क्योंकि अगर वो दिन में करेंगे तो उतने टेन्योर पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, तो कितनी ज्यादा लॉस है.
इसीलिए वो उस टाइम किया जाता है जिस समय इम्पैक्ट कम हो। बस इसका एक केस ये भी तो हो सकता है कि अगर हम, जैसे कि आपने बताया, व्हाट्सएप हमें नाइट में 2 या 3 o'clock पे अपडेट कर देता है, तो उस टाइम पे सारे नोटिफिकेशन, सॉरी, सारे यूजर्स को ये नोटिफिकेशन तो वो रीड नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, यू आर करेक्ट। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि एक्चुअली मे बी व्हाट्सएप इज नॉट अ करेक्ट एग्जांपल, बट मेरा मोटिव ये है कि एक्चुअली जो हम मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं इंडस्ट्री में, वो उसको क्या एक और भी माइंडसेट में क्या रखते हैं। व्हाट्सएप तो एक जनरल टर्म है। वो हो सकता है कि अगर मान लो कि व्हाट्सएप में वो चाहते हो कि भाई हमें सबको तुरंत चाहते हैं कि कोई अपडेट कर ले, तो दे कैन पुश एट एनी टाइम इन अ मॉर्निंग एज वेल। लेकिन अगर तो आप बैंक की बात करोगे, जहाँ पे बैंक है, या जैसे मान लो गूगल है जहाँ पे आप सर्च इंजन है, अब गूगल अपना मेंटेनेंस सोच सपोज करो कि 9 से 12 के बीच में करने लगेगा इंडियन टाइम जोन के हिसाब से, तो फिर 9 से 12 पे गूगल पे कोई काम नहीं कर पाएगा। या ये बात सही है। तो वो ये चीज माइंड में ध्यान रख के रखते हैं कि हमें किस टाइम पे मेंटेनेंस होगा। जितनी भी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उसमें जो मेंटेनेंस एक्टिविटी होगी वो ओवर ऑन वीकेंड होगी। इवन तो ये प्रोडक्शन जो डिप्लॉयमेंट है, जब वाटरफॉल अप्रोच होता था तो डिप्लॉयमेंट सैटरडे और संडे को होता था, तो कुछ टीम के पर्सन्स और इंफ्रा के बंदे हाफिज जाते थे सैटरडे संडे को डिप्लॉयमेंट करने के लिए। अभी भी जब एक बार आप एजाइल में चीजें आपकी गो लाइव हो जाएंगे और जब डिप्लॉयमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं आफ्टर बिजनेस आवर्स। एक टर्म होता है आफ्टर बिजनेस आवर्स, मतलब 9 to 6 के बाद या फिर वीकेंड। तो हम ये ऐसे इसको हम विंडो डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। एक विंडो विंडो मतलब एक टाइम जोन जिसमें आप बेसिकली डिप्लॉय कर सको। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन या स्टिल एनी क्वेश्चन? Okay, so I'm going to, this I told already explain you exactly what are in agile methodology. Now coming to that next part. Uh, did you remember when I was talking about this iterative way कि exactly इस iterative way में जो भी ये एक part है, ये sprint हम कहते हैं कि हम बेसिकली स्प्रिंट्स, आई टोल्ड यू लाइक 100 मीटर इन रनिंग। बेसिकली जो आप जब रनिंग की कोई भी आप स्पोर्ट्स देखोगे तो उसमें 50 मीटर्स 100 मीटर्स के स्प्रिंट्स लगते हैं। तो स्प्रिंट्स is one of the popular methodologies or method in agile framework. सिर्फ sprint sorry, in sprints basically there's a scrum methodologies. So scrum is an popular agile methodologies जिसमें हम 2 वीक के स्प्रिंट्स डिफाइन करते हैं कि वो 10 डेज का रहेगा, 7 to 9 डेज का रहेगा, एक्सेट्रा। तो सबसे ज्यादा हम स्क्रम आज की डेट में यूज हो रहा है, जो कि वन ऑफ द पॉपुलर मेथोडोलॉजीज है। इसमें हम पहले स्क्रम के व्यूज देखते हैं कि हाँ स्क्रम्स में होता क्या है या कौन कौन रहता है। तो एक होता है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर आप ऐसे समझ लो कि जो कि सारे जो भी चीजें हो रही हैं उसको वो चीज जैसे मीटिंग्स हैं, क्या क्या चीजें प्लान करनी है, कैसे कैसे प्लान करनी है, वो काम स्क्रम मास्टर कराएगा। आप ऐसे समझ लो प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज लाइक एन स्क्रम मास्टर इन इन स्क्रम मेथोडोलॉजीज। इसके बाद इसमें स्क्रम मीटिंग्स होती हैं। आई विल लेट यू नो कि क्या क्या स्क्रम मीटिंग्स होती हैं। प्रोडक्ट ऑनर होता है, जैसे अगेन कोई बैंकिंग या व्हाट्सएप का आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप इज अ प्रोडक्ट। स्क्रम मास्टर का प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ऑनर इज ओनिंग द प्रोडक्ट। वो डिफाइन करेगा कि कैसे क्या चीजें होनी है, क्या फीचर्स आना है, क्या नहीं आना है। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पूरी पावर होती थी पूरी टीम्स को भी हैंडल करने की और जो प्रोडक्ट है उसको भी हैंडल करने की। बट यहाँ ये दो पार्ट डिवाइड हो जाता है। यहाँ जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑनर डिसाइड करता है कि क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसे रहेगा। और वो प्रोडक्ट बैकलॉग प्रिपेयर करेगा। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब कि हम बेसिकली एपिक्स, यूजर स्टोरी, इन सब में डिवाइड कर देते हैं कि क्या क्या चीजें। बैकलॉग मतलब समझ रहे हो ना कि आप चीजें बैकलॉग में डालते जा रहे हो और उसमें से फिर जो भी होगा वो स्प्रिंट्स पे हम पिक करते रहेंगे। तो इस ये सारी चीजें जो है वो स्क्रम्स के पार्ट है। आई विल लेट यू नो अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट कि बेसिकली क्या क्या स्क्रम्स मीटिंग के अंदर क्या क्या स्क्रम इवेंट्स है। Also, Scrum events is a very popular question which we'll ask in interview कि भाई Scrum events क्या क्या है। तो you can read here like Scrum is an agile development method which
concretes specifically on how to manage tasks within a team-based development environment. Basically, Scrum derived from activity that occurs during a rugby match. Scrums believe in empowering development teams, educate working with small teams, 7 to 9 members. Agile and Scrum consist of 3 roles, and their responsibility explained follows. तो मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली ये एक स्मॉल ड्यूरेशन होता है, जैसे 7 to 9 डेज, सॉरी 7 to 9 मेंबर्स। बेसिकली स्क्रम की टीम भी होती है, बहुत लंबी नहीं होती है। जैसे पहले 70 80 100 तक की टीम्स होती थी। अगर कोई 100 पर्सन की टीम, कोई 100 पर्सन की टीम से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तब वो एक स्क्रम नहीं रहेगा, उसको वो 5 6 8 10 स्क्रम्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे कोई भी, जैसे मान लो क्रिकेट या फुटबॉल मैच है, उसमें 11 11 प्लेयर्स ही खेलते हैं एट अ टाइम। अगर 100 प्लेयर्स हैं तो वो 10 10 टीम बना के उनको खिलाएंगे। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स भी है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो भी एक लिमिट होती है। कभी भी 20 22 की नहीं रहेगी, मैक्सिमम 8 10 12 तक की, जो कि आप बना सकते हो। आप 20 50 100 की बना सकते हो, बट वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा। जो भी इसकी चीजें हैं, वो चीजें फिर वर्कआउट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो आइडियल है, आइडियल मेंबर्स बोलते हैं, वो मैक्सिमम 8 बोलते हैं। तो 7 to 9 या 10 तक लोग रहते हैं पर स्क्रम में। अब इसमें हम एक बात कर रहे थे कि स्क्रम इवेंट्स की, कि क्या क्या होता है। तो स्क्रम इवेंट्स की अगर हम बात करें, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रोडक्ट ऑनर है वो बैकलॉग प्रिपेयर करेगा। तो जब बैकलॉग प्रिपेयर होगा, सपोज करिए आपके बैकलॉग प्रिपरेशन मतलब आपके पास लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई कि भाई हमें घर बनाना है, हमें डोर्स लगाने हैं, हमें विंडोज लगाने हैं, हमें विंडोज में ग्लासेस लगाने हैं। ये सब हो गया बैकलॉग प्रिपरेशन। उसके बाद आप स्प्रिंट प्लानिंग करोगे। स्प्रिंट प्लानिंग इज मोर लाइक दैट कि ये आपकी सपोज करो 2 वीक्स की स्प्रिंट्स होगी, 3 वीक्स की स्प्रिंट होगी, पहले डिसाइड हो जाती है। अभी भी मोस्टली इन जनरली 2 वीक्स की स्प्रिंट होती है। 2 वीक्स मतलब 10 वर्किंग डेज की। तो आप स्प्रिंट प्लानिंग करोगे कि 10, बेसिकली हमारी ये होगी 10 डेज की स्प्रिंट्स होगी। अब स्प्रिंट प्लानिंग में और क्या क्या चीजें रहेंगी, आपकी जो रिसोर्सेस है, जैसे 10 लोग हैं, उनकी क्या क्या कैपेसिटी है, उस हिसाब से नंबर ऑफ आइटम्स उस स्प्रिंट्स में आप रखोगे। जैसे 10 लोग हैं, एक लोग 2 यूजर स्टोरी क्लोज कर सकता है, तो मतलब आपके पास 20 यूजर स्टोरी उस स्प्रिंट में रहेगी। हाई लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ऑन वेरी डिटेल लेवल। तो ये पार्ट स्प्रिंट प्लानिंग का पार्ट हुआ। डेली स्क्रम, डेली स्क्रम आप ऐसे समझ लो कि आप मॉनिटरिंग होता है, मतलब मॉनिटरिंग इन द सेंस कि एक डेली स्टैंड अप होता है, इसको स्टैंड अप भी बोलते हैं। स्क्रम की जगह कई जगह स्टैंड अप भी यूज वर्ड होता है। तो एक डेली स्टैंड अप होता है कि भाई हम सुबह सुबह या शाम को या दोपहर में जो भी अवेलेबिलिटी है सारे रिसोर्स की, हम एक मीटिंग करेंगे। उसमें हम अपडेट लेंगे कि मतलब उसमें ये दिया जाता है कि आपने कल क्या किया और आप आज क्या काम कर रहे हो, और आपके पास कोई इम्पेडिमेंट्स है या नहीं। इम्पेडिमेंट्स मतलब कि कोई ऐसा इशू जिसकी वजह से आप ब्लॉक हो गए हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया सर्वर ही डाउन है, जैसे कोई बैंक एप्लीकेशन है, सर्वर ही डाउन, वो बंदा काम नहीं कर पा रहा है। या कोई टूल्स है, उसके लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, या नेटवर्क इश्यूज है। दोज आर बेसिकली कॉल्ड इम्पेडिमेंट, कि आप बेसिकली यू आर ब्लॉक्ड, नॉट एबल टू प्रोसीड इट। तो ये पार्ट आप बेसिकली स्टैंड अप में डिस्कस करते हो। स्टैंड अप मतलब हर एक पर्सन अपडेट देगा उस यूजर स्टोरी पे जिस पे वो काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं मान लो एक लॉगिन पेज पे काम कर रहा हूँ, तो आई विल गिव अपडेट कि मैंने कल लॉगिन पे क्या काम किया। तो मैं बताऊंगा कि हाँ, लॉगिन के मैंने फॉर्म बना लिए हैं, बैकएंड से कनेक्शन बना लिया है, टेस्टिंग करना है जो मैं आज करूंगा, जीए यूनिट लिखना है वो मैं आज लिखूंगा। तो ये मेरा डेली अपडेट हुआ। अगर कुछ इम्पेडिमेंट्स है तो मैं बताऊंगा कि हाँ, ये वो उस एपीआई से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, एपीआई बी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप इम्पेडिमेंट रेज करोगे। और जो स्क्रम मास्टर है वो फैसिलिटेट करता है कि स्क्रम के लिए किस टीम को पहुंचना है, किससे डिस्कस करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, वो स्क्रम मास्टर का काम होता है। तो ये हो गया आपका स्क्रम या स्टैंड अप। एक होता है स्प्रिंट रिव्यू। जब आपका 10 डेज का है, सपोज करो कि अगर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आपका ये 20 से 2 वीक्स का हुआ, तो आपका एक 20 से 24, 27 से 31, तो करीब 31 को आपका जो ये है स्प्रिंट है वो क्लोज हो रहा है। तो आप 31 को अपने स्प्रिंट की रिव्यू करोगे। स्प्रिंट का रिव्यू मतलब यही कि जैसे ठेकेदार होता है ना, वो आता है देखता है कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी है
कि बेसिकली सारे टीम्स बंदे बैठते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ। हमने जैसे 20 आइटम्स 20 यूजर स्टोरी पिक्स की थी, तो उसमें कितने क्लोज हो गए हैं, कितने क्लोज होने वाले हैं, कितने परसेंट काम हुआ है। तो वो सारी चीजें हम बेसिकली स्प्रिंट रिव्यू के अंदर देखते हैं। इसमें एक चीज मिस है, हम बेसिकली डेमो भी देते हैं। मतलब जिस दिन हमारा स्प्रिंट फिनिश होता है, जिस दिन रिव्यू करते हैं, तो इसके अंदर डेमो भी आता है कि जो भी फंक्शनलिटी डिलीवर हुई, जैसे मान लो 20 आइटम्स थे, उसमें एक लॉगिन का पेज है, एक रजिस्ट्रेशन का पेज है, एक कुछ डिटेल्स का पेज है। तो जो जो चीजें डेवलप हो गई हैं, आप वो डेमो भी दोगे। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, सारे स्टेक होल्डर मतलब बिजनेस के भी बंदे आते हैं जो उसको यूज करेंगे। इन जनरल टर्म बैंक के भी बंदे आएंगे, जैसे एक डेवलपमेंट की टीम हो गई जिसको आईटी की टीम बोलते हैं, और एक यूजर्स की टीम जो जैसे जो बैंक के हैं। तो जो बैंक के बंदे आएंगे वो भी देखेंगे कि हाँ भाई ये लॉगिन पेज वैसे ही है ना जैसा हम चाह रहे हैं। वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो फीडबैक वहीं पे देंगे। इसी को हम बात करते हैं एजाइल के टर्म में कस्टमर फीडबैक। यहाँ पे कस्टमर फीडबैक, तो आपको यहीं पे फीडबैक मिल जाएगा अपने डेमो के टाइम पे, और आप उसको एक्शन आइटम में नोट कर लोगे, जो कि बेसिकली यू कैन क्रिएट अ यूजर स्टोरी इन बैकलॉग डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। ये क्लियर हुआ स्प्रिंट रिव्यू तक? So, sir, basically in a sprint review, like both product owner and scrum master are involved in there. यस, बोथ स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर एंड बिजनेस यूजर्स एज वेल। मतलब उस ये देखो यहाँ पे भी हमें बताया था ना कि ये तो आपकी टीम ही हो गई, स्क्रम्स की टीम, Yes, sir. जिसमें स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर और जो डेवलपर्स है, यहाँ पे देख रहे हो ना ये सारे डेवलपर्स जो भी हैं, ये तो टीम हो गई। इसके अलावा इस रिव्यू में बिजनेस के भी बंदे आएंगे, बिजनेस इन द सेंस जो एक्चुअल यूजर्स हैं उसके भी बंदे आएंगे, वो अपना फीडबैक भी देंगे। तो ये सारी चीजें तुम्हारे आपके डेमो के अंदर आ जाती है। इसमें डेमो भी और मैं सर इंक्लूड किया हूँ। अगर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर एज ए एग्जांपल हम किसी लाइव प्रोजेक्ट्स का रखें तो, एज लाइक कोई एग्जांपल हाँ, जिसमें लाइव ही यूजर्स मैं भी। बता रहा हूँ। जैसे बैंक है, ठीक है, आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, यू यूज द इंटरनेट ओके। बैंकिंग। अगर सपोज करो कि वो एप्लीकेशन आप बना रहे हो, यू यू आर डेवलपिंग दैट एप्लीकेशन और यू आर इम्प्रूविंग और डूइंग एनीथिंग। तो आपकी चार चार लोग की डेवलपमेंट की टीम हो गई, चार लोग की टेस्टर हो गई, 8, 2 बिजनेस एनालिस्ट, 10, इसके अलावा 2 और लोग हैं, स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ऑनर, ये 12 पर्सन हो गए। तो जो भी इस ये स्प्रिंट रिव्यू में तो ये 12 लोग रहेंगे ही। स्प्रिंट रिव्यू में ही उसी दिन हम एक डेमो भी करते हैं, जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है। डेमो में हम क्या करेंगे, ये 10 लोग रिव्यू करेंगे स्प्रिंट को कि हमारी प्रोग्रेस कितना है, व्हाट आर द प्रोग्रेस एक्चुअली, वेयर वी स्टक, वेयर वी डिडंट स्टक। तो वो चीजें हैं बट हम स्प्रिंट रिव्यू में देखेंगे। वन सेकंड। इसी दिन हम डेमो भी परफॉर्म करते हैं। डेमो में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं उनको। स्टेक होल्डर मतलब जो जैसे जो बैंक के यूजर हो गए, जो बैंक, आप बैंक में जाते हैं, जो बंदे काम कर रहे होते हैं, वो भी आएंगे और वो भी देखेंगे कि आपका डेवलपमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो कुछ भी पाते हैं तो वो अपना फीडबैक उसी टाइम पे देंगे। हाँ, अब आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? एट अ टाइम अगर कोई प्रोसेस में सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट चल रही है तो उस टाइम पे क्या ट्रांजेक्शन, जैसे कि आपने ट्रांजेक्शन पे दिया, तो ट्रांजेक्शन तो बीच में हमारा अगर वो कहीं फंस सकता है या फिर ट्रांजेक्शन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या ऐसे टाइम पे यूजर्स वहां पे विजिट करेंगे? डेफिनेटली आप सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो वहां पे बैठे हैं। बैंक के अंदर उनके अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग सेल्स के बंदे होते हैं, तो उनके सेल्स के बंदे विजिट करेंगे। जरूरी नहीं कि जो कैशियर है वो आए, द सेल्स पर्सन कैम्स कम ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि बैंक के बंदे जो बेसिकली यूजर्स होते हैं उन वो आएंगे। अब उसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो बंदा बैठ के काम कर रहा है वो आएगा, उसमें जो सेल्स की टीम है वो आएगी। बेसिकली दैट कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। वो डेमो में आते हैं। स्प्रिंट रिव्यू यहाँ पे डेमो मिस है, डेमो मिस इन द सेंस कि इट्स नॉट बीन हाईलाइटेड। सो रिव्यू के साथ डेमो भी होता है। रिव्यू में तो सिर्फ टीम रहती है, बट डेमो में वो भी आते हैं। द नेक्स्ट फेज, इज दैट क्लियर और स्टिल नॉट क्लियर? Cleared, sir. ओके। सो जो नेक्स्ट फेज है वो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव है। ये मुझे कोई समझा सकता है, आई मीन इफ एनीवन फैमिलियर अबाउट द एजाइल, की रेट्रोस्पेक्टिव क्यों या क्या है, Can I, sir? व्हाई इट इज? यस प्लीज। Uh,
Like sir, this retrospective meeting happens after review meeting, and Yes. like our Scrum team meets and discuss, and also documents following points like what went during his sprint, like past practices, and what did not get well in the sprint, like lesson learned and action items. Mm-hmm. Good. So it is basically these following points are discussed in this meeting, and it is basically happened after a sprint review. Good. Hello. Hello. Yes. The sprint retrospective is basically done for how was our previous sprint is going and how we can improve our means our performance during next sprint. Next sprint. We study in sprint retrospective meeting. We Good. discuss with Scrum Master and also and testing team and development team. Those our teams are all present in sprint retrospective. Very good. Yeah. So that's which where guys are explaining. So retrospective में मतलब हम basically examine करते हैं what went well, क्या अच्छा हुआ, and what we can improve, और हम क्या improve कर सकते हैं. Majorly two things. जैसे what went well, मैंने बताया कि मान लो हमने 20 यूजर स्टोरी ली है, हमने 10 डिलीवर किए, तो वो वेंट वेल में गया कि हाँ भाई ये 10 यूजर स्टोरी डिलीवर हो गई है. अच्छा क्या नहीं हुआ, हमने 20 प्लान किए थे, 10 ही डिलीवर हुए, तो दैट डिडंट वेंट वेल. इसका मतलब हमारी प्लानिंग हमें अच्छी करनी है, द प्लानिंग वाज नॉट गुड. सेकंड चीज, जैसे मान लो मैंने लॉगिन पेज का एग्जांपल दिया कि हमें लॉगिन पेज बनाना है, सो रिक्वायरमेंट प्रॉपर क्लियर कैप्चर नहीं था यूजर स्टोरी में कि लॉगिन पेज में क्या क्या फील्ड होंगे, क्या क्या वैलिडेशंस होंगे या रजिस्टर. तो ये चीजें जो चीज है हम रेट्रो में डिस्कस करते हैं कि हाँ हम कैसे इसमें किसी पे बेसिकली रेट्रो में कई बार आप कन्वर्सेशन में देखोगे तो मोर लाइक दैट, जैसे पार्लियामेंट में कन्वर्सेशन होता है ना वैसे होता है, एक दूसरे के ऊपर लोग खूब क्वेश्चंस कि इन्होंने ये अच्छा नहीं किया. ऐसा बेसिकली इसका सेटअप नहीं है, ऐसा नहीं है. इसमें किसी को ऐसा नहीं कि हमें मतलब किसी को आप क्वेश्चंस कर रहे हो. इसमें मोर अबाउट दैट जो भी स्प्रिंट में प्लानिंग हुई है आपको उसको कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सके, वो चीज है. और कोई अच्छा काम किया तो उसको कैसे अप्रिसिएट करें. तो बेसिकली दैट्स द थिंग कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी डिस्कस, व्हाट वेंट वेल क्या अच्छा हुआ, एंड व्हाट टू इम्प्रूव, दैट वी डिस्कस इन रेट्रो पॉइंट. और उसके जो आउटकम है उसके बेसिस पे हम एक्शन आइटम्स बनाते हैं कि हम इस चीज को कीप मॉनिटरिंग करेंगे जब तक ये इम्प्रूव ना हो जाए. जैसे मैंने एग्जांपल बताया रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप एक एक्शन आइटम बना दिए कि रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर नहीं है, एंड नाउ इन एवरी रिफाइनमेंट और रिफाइनमेंट यू कैन एबल टू डिस्कस कि हाँ भाई हमें रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर करना है. तो ये चीज हुआ. मैंने प्रोडक्ट बैकलॉग और रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट हाँ दैट्स वेरी गुड. ये कौन एक्सप्लेन करेगा प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट, एनीवन कैन एबल टू एक्सप्लेन? Can I try? यस प्लीज. Actually, sir, I know about product backlog, but I think like if I'm talking about product backlog, so So it is first talk about basically the product backlog. It's basically yes, written yes. in one term, product backlog refinement. You may distribute in Yes, two parts, like product backlog and refinement. okay, 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 sure, sure. Like if I'm talking about product backlog, so it is basically imagined as a wish list of product owner, like Hmm. uh, which priorities as per the business needs. It is basically Yes. a bucket or stores, like a wish list of product owner. And if I'm talking Uh-huh. about product backlog refinement, so I think it is like our software or our product meets its needs or requirements and all. I think it can be. Cool. Yeah. So basically, as I told you here, you can see from this picture, there was a product owner which prepare product backlog. So basically, product owner में मतलब business के भी teams होती हैं, अकेला product owner नहीं होता. I mean to that BA business analyst. So with the help of business analyst, product owner जो भी requirement है, जैसे बिल्डिंग्स बनानी है तो ईंट सीमेंट बालू गिट्टी फ्लोर डिजाइन एक्सेट्रा सब कुछ आपके एक बैकलॉग में रहेगा. बैकलॉग मतलब एक बास्केट समझ लीजिए, और फिर उस बास्केट से आप जो स्प्रिंट्स है उसके अंदर डालते जाओगे. तो एक
तो यहाँ पे यही हो गया, तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया। अब जब रिफाइनमेंट की मीटिंग होती है, देयर इज आल्सो 1 or 2 टाइम्स विद इन अ स्क्रम हम रिफाइनमेंट करते हैं। तो रिफाइनमेंट में जब हम मीटिंग करते हैं तो हम बैकलॉग से जो प्रायोरिटीज है, याद है हमने डिस्कस किया था कि प्रायोरिटीज बेसिस पे चीजों को पिक की जाती है। तो जो प्रायोरिटीज है हम उसको स्प्रिंट के लिए प्लान करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट बैकलॉग से चीजें उठाई और उसको रिफाइनमेंट की जो मीटिंग है उसमें उस एक आइटम को पिक किया। फॉर एन एग्जांपल लॉगिन पेज है, हमने बैकलॉग से लॉगिन पेज उठाया कि ये प्रायोरिटी पे है, तो लॉगिन पेज को उठा के हमने स्प्रिंट के अंदर प्लान किया। अब जब स्प्रिंट के अंदर आप डालोगे तो उसमें दो और चीज होंगे, एक प्लानिंग एंड पोकरिंग। तो प्लान किया आपने किस स्प्रिंट में डालना है, मान लो नेक्स्ट स्प्रिंट में डालना है, अब उसको आप पोकरिंग भी करोगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, स्मॉल, मीडियम, हाई, और उसको फेबनॉकी सीरीज में भी पोकर कहते हैं। तो सारे जो जितने भी डेवलपर्स हैं, स्मार्ट डेवलपर्स, वो अपने पोकर पॉइंट में डालते हैं। तो आप ये टर्म नोट कर लो, प्लानिंग एंड पोकरिंग। आफ्टर दिस सेशन यू मे जस्ट गो थ्रू कि क्या होता है। तो उसमें सारे यूजर्स अपने पॉइंट्स डालते हैं। जैसे मैंने डाला कि मेरे लॉगिन पेज की कॉम्प्लेक्सिटी स्मॉल है, किसी और ने डाला मीडियम है, किसी और ने डाला हाई है। तो ऐसे वो डालते हैं। फिर उसमें एक डिस्कशन होता है कि मैं अपना व्यू बताऊंगा कि मैंने क्यों स्मॉल डाला, आप में से किसी ने बताया जैसे कि उसके लिए क्यों मीडियम है, आप में से किसी थर्ड बंदे ने बताया उसके लिए क्यों हाई है। और बेस्ड ऑन दैट ऑल डिस्कशन वी टर्न अराउंड दैट कि हाँ भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम है या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है या इसकी स्मॉल है। उसमें सोल्यूशन पे भी डिस्कस होगा, इसकी सोल्यूशंस क्या है। और अगर कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी डिस्कस होगा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये चीजें हम रिफाइनमेंट के अंडर डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट द स्क्रम इवेंट्स। Again, this is some nice picture you can take a reference कि हम जो रिलीज प्लानिंग अभी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रिलीज प्लानिंग इन द टर्म ऑफ द डिप्लॉयमेंट जाता है, जो हम एमवीपी की बात किए थे। तो आप इस चीज को छोड़ दो। रिलीज प्लानिंग आपका एसोसिएट, प्रोडक्ट बैकलॉग आपका एसोसिएट रिलीज प्लानिंग से रहता है। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग से अभी आप सोचो। तो जो प्रोडक्ट बैकलॉग से आपने स्प्रिंट प्लानिंग की कि किस किस स्प्रिंट्स में क्या क्या कौन कौन सी यूजर से स्टोरी रहेंगी। नॉर्मली हम अगले 1 या 2 स्प्रिंट्स की प्लान कर चुके रहते हैं। ऐसा नहीं कि कल स्प्रिंट से स्टार्ट होना तो हम इसकी प्लानिंग करेंगे। उसकी ऑलरेडी 1 या 2 स्प्रिंट की प्लानिंग एडवांस में चलती रहती है। डेली स्क्रम आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो डेली स्क्रम्स है वो डेली स्टैंड अप भी बोलते हैं, जिसमें हम हर 15 मिनट या हाफ एन आवर का मैक्सिमम होता है, 15 to 30 मिनट डिपेंड अपॉन योर टीम साइज। ये एक डेली कॉल होती है जिसमें आप अपडेट देते हो कि आपने कल क्या किया और आप आज क्या करने वाले हो और कोई इम्पेडिमेंट है कि नहीं। दैट बेसिकली 3 आइटम यू हैव टू बी स्पीक। जो आपका स्प्रिंट है, मैंने बताया कि इसका टेन्योर वाटरफॉल की तरह नहीं होता है जहाँ 6 महीने, साल भर, 2 साल का प्रोजेक्ट चल रहा हो। एट द एंड बेसिकली ये 1 to 4 वीक्स, जिसमें 2 वीक्स फेमस है। तो बेसिकली आपकी स्प्रिंट 2 वीक्स की ही होती है। और इसके बाद हम स्प्रिंट रेट्रो करते हैं। हाँ प्लीज, समवन इज आस्किंग एनीथिंग, एनीवन आस्किंग एनीथिंग, or shall I proceed? Please put raise your hand from Archana, team so that I can recognize who is Archana. क्या सर? हेलो। You are asking anything? Hello. नो सर, आई Okay, थिंक जो then please. आपने स्टार्टअप में, Yes, please. तो मेरी क्लासेस रह गई थी, तो उसका अगर कुछ मुझे कोई लिंक्स वगैरह या हाँ कुछ आपको है हर तो वो आप डिटेल्स शेयर कर you will सकते definitely you will get the details, no worry. हैं, डिटेल्स। Yeah, you will get the details. तो I was here basically, so 1 to 4 वीक की आपकी sprints होती है, and then when it's get finished, so sprint retrospect, sprint review, and then basically first sprint demo होता है, then review होता है, क्योंकि इसके बाद ही आप तुरंत प्लान करते हो नेक्स्ट स्प्रिंट को। तो बेसिकली these are the things which we do during our agile scrum methodology. Within scrum we follow that this sprint part. सो ये चीज है स्क्रम क्यों, क्योंकि उसमें एक स्क्रम मास्टर होता है। आई मीन दैट इज द बेस मेन थिंग। सो इट्स बेसिकली ड्राइव बाय द स्क्रम मास्टर। अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे बिजनेस बोलता है कि भाई हमें लॉगिन पेज ही चाहिए, डेवलपर बोलता है नहीं भाई हम नहीं दे सकते अभी लॉगिन पेज, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं। स्क्रम मास्टर टेक अ स्टैंड दैट ओके, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली द बेस्ट वे द पाथ में। मतलब कुछ भी जो कॉन्फ्लिक्ट होती है स्क्रम मास्टर रिजॉल्व करता है, कुछ भी इम्पेडिमेंट होते हैं स्क्रम मास्टर हैंडल करता है। So as I told you, it's like a product, sorry,
आईटी मैनेजर, बट अर्लियर आईटी मैनेजर आपके प्रोजेक्ट भी कैसे डिलीवर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, अभी ये काम प्रोडक्ट ऑनर कर रहा है. So these are all the things regarding today's session. I think today we covered basically agile, waterfall, SDLC. In our next session, we will pick and start from that YAML and JSON understanding and microservice concepts. This one on two topic from the next part we will pick. You will get us invites in your calendar. So, and also you can reach out if you face any issues or didn't get an invite. So next class will be on Saturday at the same time. And in next part we will cover these two. On the So I important have one thing question. ki, yes, please go ahead. Sir, all the classes are held only on Saturday or Sunday, or it's Yeah, like only daily? Saturday and Sunday. Sorry, what was the last point? Okay, okay, Yeah, sir. I got it. Thank classes will be only Saturday and Sunday at the same time. 1 hour 30 minutes. Today we started from the Sunday. The next class will be Saturday and the coming Sunday as well. I mean that 25th and 26th, something like that. सर yesterday में कोई classes थी क्या? क्योंकि because नहीं, yesterday कोई कुछ classes issues नहीं के थे. नहीं, yesterday actually we planned to start this yesterday, but actually I got occupied with some things, so didn't start from yeah, yesterday. So okay. it started तो from. मेरी क्लास स्टार्टअप मेरी क्लास मिसिंग हुई है तो उसके डिटेल्स वगैरह हाँ, या Archana, फिर you जो will भी get the details. Basically, you will get the details, and from the next part, I mean, we missed to also start the recording of the first session. So पहले session का तो नहीं, but second session की recording भी है, that we will also share you guys. And Archana, I will schedule a call with you for 10 to 15 minutes and will elaborate you. आगे से सभी classes की आपकी recordings भी मिलेंगी. So you will get the recordings of also this class. If you get missed or if you have been missed or anyone get missed, so आप recording के through जा सको. And also we will share ओके this PPT to you as well. I mean this PDF and PPT, so you can go through. You can also go through. या Yeah. And if you have sir. any doubts, so yeah, I please. have one question. Sir, can we get any certificate after completing this training and all? Can you get what Any assessment? certificate from your side? Other guy, Achana, can you go on mute because I'm not able to listen properly. Please, guys, go on mute. Who is speaking? Please just do unmute on that person. Yeah, Vishal, go ahead. Yes, sir. I am asking, can we get any certification after completing this training? Yes, definitely. At the end, you have an assessment that will be actual live assessment, not like that true, false, and etc. It's more like a practical exam. So basically, you have to be complete that part within 3 hours, and based on that, you will get your certificate. So, sir, it is mandatory to clear that exam. If we clear that, get There is only. a one completion certificate that after this course you will get a for this successfully completed certificate, and there is an exam based, like you are basically based on your remarks we will identify you excellent, good, something like that, and to clear the exam. So that's another certificate to after clearing the exam. So there's a two certificate, one is a completion and one is a exam based. So completion certificate, you all guys will get it. It's a there's a nothing for that, but the exam based will get only after clearing the exam. So, one thing And more, is there any yes, we done any project during this training? Any yes, live you will get assessment and project as well. Not live project definitely, because look, live project are having their own deadline and etc. And there are also lot more things, so code quality and exactly, so we can't say that part, but basically your dummy project also is a replica of live project, like the actual you can say that the actual live code. For an example, I took like a banking project, so it can be that you have been given a module of the API to test the transaction part, and you have to write a script for the automation. So basically you have to all those things, which is basically they are doing. The main purpose of this training that
we can skill up and grow you at the same level like the other experienced people are working in the organization. So within Yes, one and a yes. half month, within 1.5 months, we will provide you that platform so that you can, you look, you can't directly pitch into that any running a live project, but the same replica of that live project, we will give you an assessment which you have to do it. So you, I think so within you will get 2 or 3 assessment before going to that actual exams. Okay, sir. And you Okay, have got to it. do in the same way like that. You have to be create a repository, a Git repository. It's not like that you can just zip and send a mail to us. You have to work on the Git repository. You have to keep the project over there. We will review the your code from there. We will give you remarks from there. So everything is the same like that. How the things are going into an industry. So I was coming into that part actually. So what our plan? These are the basic concepts which we will explain you. Then the important thing is here like automation of REST service and regression test suite and performance test. So these three are basically very much important things. And for these three part, you will get an assessment as well. And basically you can go through in main times like Git repository, create your accounts, etc. And then you have to be write your scripts. You can use any of the in, IDE like either Microsoft ID or IntelliJ or anyone. You can use it based on that your requirement. Else we will also convey you which ID is good. And then basically in this part we will explain you exactly how the automation works, how the regression test should work. Here in performance test part, basically we cover the NFR which we discussed, non-functional requirement. So there are also some tools which comes, so like load runner, etc. So which we have, which we will use, and we will let you know how basically the performance testing on ongoing. So also there will be assessment for this one. These are the tools which will help you to automate your regression test suite job and regression test suite job. And once it will be complete, you will get into any assignment, could be for three only weekend, which you have to be 3 hours to 8 hours, something like that. A small assignment will be given. Depend upon that situation as well. Could be that it will be a long assignment as well, which will take 1 to 2 days, or maybe short assignment. So that we will design during the end. And one certification you will get completion of this program, and one certificate which you will get after clearing the exams. So is that clear to everyone or still? ओके सर, बट जैसे कि अभी जो भी हमारी ट्रेनिंग में हमें बताया गया है, अभी ऑल थ्योरी पार्ट्स, नॉट अ प्रैक्टिकल. अभी तो हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक चीजों को. देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल गेट स्टार्टेड एट द मोमेंट. नाउ प्रैक्टिकल विल गेट स्टार्टेड इन दिस फेज. जो आपका प्रैक्टिकल जो है वो बेसिकली यहाँ तक तो सब थ्योरी ही रहेगी. थ्योरी इन द सेंस कि यहाँ पे बेसिकली मैं आपको कल से, मतलब जो नेक्स्ट सेशन है कल से, मतलब कमिंग सैटरडे एंड संडे, ओके. आपको मतलब ये सब मैं समझाऊंगा. बट आपको जो एक्चुअल आपका काम स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी है, जहाँ पे अभी मैं आपको कुछ भी दूंगा आप नहीं कर पाओगे. इफ आई आस्क यू टू राइट एनी स्क्रिप्ट्स, यू या डोंट नो YAML वही इंजेक्शन एंड एक्चुअली माइक्रो मेरा सर्विस. तो मेन. तो अह, तो वो चीज आप नहीं कर पाओगे. तो सराउंडिंग चीज तभी मैंने बोला कि यू विल आल्सो गेट टू नो द सराउंडिंग थिंग्स, क्योंकि उसके बिना मैं आपको बोलूं, जैसे आप सपोज करो किसी सिटी ए में रह रहे हो कि आपको सिटी बी जाना है, बट अगर आपको पता नहीं कि फ्लाइट्स कौन सी है, ट्रेन कौन सी है, रोड कौन सा है उस सिटी, तो आप नहीं जा पाओ. तो इसीलिए ये सारी चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है टू बिफोर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल. या एक्चुअली मेरा यही जानने का पर्पस है कि अभी तो थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल हाउ टू वर्क, या क्या उसके टूल्स होंगे, इंस्टॉलेशन. सारे आपको बताए जाएंगे. सो नो वरी अबाउट दैट. सारे आपको प्रैक्टिकल्स के उसके बिकॉज लिए आपको ट्रेनिंग सेशन का टाइम बहुत काफी लिमिटेड है, ओनली 2 months. that's our responsibility to cover those things.
हम कोई मतलब वी डोंट फोकस दैट कि हम हर चीज बता दें कि सब चीज कवर करना है। वी आर गोइंग टू बी ओनली की वी आर गोइंग टू ओनली की इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो जैसे आप मान लो कि आप कॉलेज में जब जैसे इंजीनियरिंग में ही पढ़ते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल भी पढ़ते हो, आप मैकेनिकल भी पढ़ते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हो, सब कुछ। हम बहुत लेंदी और वास्ट नहीं सोच रहे हैं। वी आर ओनली गोइंग टू दैट की थिंग्स विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ इट्स रिक्वायर्ड वी विल maximize the time or maximize the duration from 1.5 hour to 2 hours or 2.5 hours or 3 hours, something like that, we will take care of it. And also we are not going to just in hurry to finish it. We will always keep in mind to deliver on a quality, not a quantity. So always our focus to be that deliver on the quality things. So don't worry about all those things कि limited time है, इसमें कैसे होगा, उसमें कैसे होगा. I knew those things because I worked a lot in this part, and not only for you guys, also like that for corporate things I am doing since long 10 years. So don't worry about these things कि हाँ ये कैसे होगा वो कैसे होगा. That part you can leave to me. You can be focused what exactly you have learned, what exactly you have to be understand, what exactly you are going to do. So just इस चीज पे focus करो. कैसे deliver करना है ये it's our responsibility. सो डोंट बी पैनिक इनटू दिस पार्ट कि हाँ भाई इतने कम टाइम में ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा. और द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू से यू, लोग जो रिग्रेशन टेस्ट सूट होते हैं इसमें बेसिकली यू हैव टू बी राइट स्क्रिप्ट्स. सो राइट स्क्रिप्ट्स में फिर आपको एक स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए. स्क्रिप्टिंग लाइक पाइथन, स्क्रिप्टिंग लाइक जावा स्क्रिप्ट्स. सो आप जावा भी यूज होता है, आप नॉट इन स्क्रिप्टिंग बट राइट रिग्रेशन टेस्ट. तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आप कौन सी एक लैंग्वेज पे बेसिक चीज पढ़ लीजिए. यू डोंट नो टू बी, जैसे मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश सीखना तो इंग्लिश में आपको पीएचडी नहीं करनी है कि आपको एकदम बिल्कुल आपको बेसिक आनी चाहिए कि हाँ हाउ टू से ही कैन गो, ही विल गो, ही इट, इतना आना चाहिए एटलीस्ट. तो आपको बेसिक एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी बिकॉज इन दिस ऑल सेशन हम लैंग्वेज नहीं सिखाने जा रहे हैं. हम आपको फ्रेमवर्क, मतलब हम आपको इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, इंग्लिश का कैसे यूज करना है वो सिखाएंगे. तो बेसिकली इस रिग्रेशन टेस्ट में इट्स रिक्वायर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपको कोई प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है दैट्स इनफ. तो वो चीज आपको आनी चाहिए. तो हम आपको नेक्स्ट उसमें बता देंगे कि आप बेसिक किस लैंग्वेज को पढ़ लो बिकॉज वी आर लुकिंग ऑन टू पॉपुलर फ्रेमवर्क, या तो रेस्ट एस्योर्ड या तो कराटे. आप नोट कर लो ये दोनों, रेस्ट एस्योर्ड या कराटे. तो हम बेसिकली इन दोनों में से कोई एक फ्रेमवर्क का आपको यूज बताएंगे कि कैसे एपीआई टेस्टिंग में ऑटोमेशन टेस्ट सूट एंड रिग्रेशन टेस्ट सूट करते हैं. तो मोस्ट प्रॉब्ली कि हम कराटे पे जाएं जिसके लिए जावा रिक्वायरमेंट होगा. तो जावा बेसिक आनी चाहिए. बेसिक मतलब अगेन कि जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट होता है, ऑनर्स नहीं करना है जावा में. तो सो डोंट बी वरी कि जावा मुझे नहीं आती और जावा पढ़ना है. जावा में बस बेसिक फंक्शन तक कि कैसे फंक्शन लिखते हैं, कैसे मेथड लिखते हैं, कैसे पैरामीटर, बस इतना ही. क्योंकि हम लैंग्वेज वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो ये चीज हम आपको एक गाइडलाइंस दे देंगे कि आप क्या क्या पढ़ लेना. क्योंकि हम लैंग्वेज पे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज पढ़ाने जाएंगे तो अगेन इट विल टेक 3 मंथ 6 मंथ. और उतना हमारा मतलब ड्यूरेशन या स्कोप नहीं है, हमारा लिमिटेड. हम उसमें जा रहे हैं और लैंग्वेज पे हम फोकस नहीं करते. और आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती है दैट्स इनफ. सो नो वरी अबाउट दैट कि आपको कोई, अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज सी भी थोड़ी बहुत पता हो, मतलब एक लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए टिल मेथड एंड फंक्शन तक. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था विच आई थॉट टू कन्वे यू कि ये ऑटोमेशन रिग्रेशन टेस्ट सूट में रिक्वायर्ड हो. Let me know for any other thing which you are having in your mind. Hello? Yes, sir. Can we like connect through any community like WhatsApp group and all? If we all agree. Yeah, basically that's a good point, Vishal. So what I will check with that technical team to create a group for you guys, and you can put your concern or maybe any chat group or any kind of messaging queue where you guys can put your request. That we will take care. Yes, So I yes. noted this point, and I will discuss that technical team. Okay. Thank you, sir. Thank you. Any other question from anyone?
Okay, then good day, guys. Have a nice Sunday, I will say, not weekend. And let's meet again on today's 19th. Then we will meet on 25th at the same time. You will get an invite in your calendar. So please be look. And you can reach out in case of any issues to our mail ID, which I am just typing. In between, if you have Thank you, any sir. doubt or any concern, you can mail to this mail ID. Okay, sir. Okay. Thanks. Okay. Thanks all of you. Okay. Okay. Thank you, sir. Bye Thank bye you so all. much. Thanks. Thanks. Bye. Bye. Hello. 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 Hello.